તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી પહોંચી ચૂક્યા છે સાણંદ ગુજરાતની મુલાકાતે અને આજના તેમના અલગ અલગ કાર્યક્રમ। તો આપ જોઈ શકો છો કે ગ્લોબલ મેપ પર સાણંદ હવે ઉભરી આવ્યું છે સેમી કંડક્ટર હબ તરીકે અને 60 લાખ ચીપ બનશે અહીંયા પ્લાન્ટમાં, જ્યાં પહોંચ્યા છે ભારતના સેમિકન્ડક્ટર મિશનને હવે ગતિ મળવા જઈ રહી છે। કેન્સના સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું તેઓએ ઉદ્ઘાટન કર્યું છે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ, અને આ ફક્ત ગુજરાત માટે જ નહીં પરંતુ દેશ માટે પણ અતિ મહત્વનું માનવામાં આવી રહ્યું છે। તો પ્લાન્ટમાં દિવસમાં કઈ રીતે કામ થશે, કેટલું ઉત્પાદન થશે, તેને લઈને આ તમામ વિગતો પણ સામે આવી રહી છે। તો કેન્સના સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે। ગ્લોબલ મેપ પર સાણંદ હવે સેમી કંડક્ટર હબ તરીકે પણ ઓળખાશે। 60 લાખ ચીપ તૈયાર થશે પ્લાન્ટમાં દિવસની, અને લોકોને રોજગારી તો મળશે, સાથે જ ગુજરાત અને દેશ માટે પણ અતિ મહત્વનું માનવામાં આવે છે। તો નાનકડું એવું સાણંદ હવે સેમી કંડક્ટર હબ તરીકે ઉભરી આવશે, જેને લઈને સ્થાનિકોમાં પણ ખુશી છે। આ સાથે ગુજરાત માટે પણ ગર્વ લેવા જેવી આ બાબત છે। તો પીએમ અત્યારે નિરીક્ષણ પણ કરી રહ્યા છે। આપ જોઈ રહ્યા છો કે પીએમએ અત્યારે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે અને જે તકતી છે તેનું અનાવરણ પણ કર્યું છે। તો ગુજરાતમાં સેમી કંડક્ટર પ્લાન્ટ આપ જોઈ શકો છો કે ધોલેરા, સાણંદ, કેન્સ અલગ અલગ આ વિસ્તારો, અને ત્યાં અલગ અલગ રીતે ઉત્પાદન પણ થશે અને જે ડિપેન્ડન્સી આપણી જે હતી એ અહીંયા ઘટી જશે। તો ગ્લોબલ મેપ પર હવે સાણંદ પણ ઉભરી આવશે। તો પીએમ મોદીએ સાણંદમાં કેન્સના સેમી કંડક્ટર પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને સમગ્ર પ્લાન્ટનું તેઓ નિરીક્ષણ પણ કરી રહ્યા છે। તો ગુજરાતમાં એક મહિનામાં જ 4માંથી 2 પ્લાન્ટમાં આ ઉત્પાદન પણ શરૂ થશે। વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા ગૌતમ પાસેથી। જી ગૌતમ, ગુજરાત માટે આ ગર્વની ક્ષણ છે અને સાણંદ માટે પણ ગર્વની ક્ષણ, કારણ કે સેમી કંડક્ટર હબ બની ગયું છે સાણંદ। જી બિલકુલ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુજરાત પ્રવાસે છે, જ્યાં પ્રવાસની શરૂઆત તેઓ ગાંધીનગરના કોબા ખાતેથી કરી હતી અને ત્યારબાદ સાણંદમાં તેઓ અહીંયા ઉપસ્થિત પહોંચ્યા છે। સાણંદ ખાતે પીએમના કેન્સ સેમિકોન ઓએસડી સુવિધાનો પ્રારંભ જે છે તે કરાવ્યો છે, અને તે અંતર્ગત પ્રોજેક્ટ કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા આ 23 સપ્ટેમ્બર 2024માં મંજૂરી આપવામાં આવી હતી। ને તે આ પ્રોજેક્ટની વાત કરીએ તો 3300 કરોડના ખર્ચે આ પ્રોજેક્ટ શરૂ થવાથી સાણંદમાં સેમિકોન ઇકોસિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનવાની છે, જે પ્લાન્ટની ભારતમાં સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે વિકાસનો આ દાયકો ટેક ફ્યુચર પોઈન્ટ સમાન જે છે તે સાબિત થવાનો છે। ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ માઇક્રોન પ્લાન્ટનો શુભારંભ જે છે તે પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું, શુભારંભ કરાવ્યો હતો, અને વધુ એક આ માઇક્રો પ્લાન્ટ જે છે તેનું લોકાર્પણ જે છે તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કરી રહ્યા છે। અત્યારે હાલ તમે જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી એની ઉપસ્થિતિ છે, સાથે કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની કુમાર વૈષ્ણવ પણ તેમની સાથે જોવા મળી રહ્યા છે। રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ જે છે તેઓની પણ વિશેષ ઉપસ્થિતિ છે, અને તેઓ આ જે પ્લાન્ટનું નિરીક્ષણ ઝીણવટતાપૂર્વક કરી રહ્યા છે। એટલે કે આઉટસોર્સ સેમિકન્ડક્ટર એસેમ્બલી ટેસ્ટ પ્લાન્ટમાં ચીપ ટેસ્ટિંગ, પેકેજિંગ કરી અને તેને માર્કેટમાં પહોંચાડવાની કામગીરી જે છે તે અહીંયા કરવામાં આવશે, તે પ્રકારની વાત અત્યારે હાલ તો સામે આવી રહી છે। એક અંદાજ અનુસંધાને આજથી આ પ્લાન્ટ જે શરૂ થવાનો છે તેના 60 લાખ જેટલી ચીપ જે છે તે નિર્માણ થશે, અને તે આવનારા દિવસોની અંદર વિશેષ રીતે સાબિત જે છે તે થવાની છે। મહત્વનું એ છે કે સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રમાં ભારતની હરણફાળ સમાન જે છે ત્યાં સ્થિતિ જોવામાં આવી રહી છે, જે કામ માટે 900 દિવસો જે છે તે પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે, અને તે પ્રકારની પણ વાત સામે આવી રહી છે। એટલે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ માઇક્રો સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનો શુભારંભ જે છે તે કરાવ્યો છે, અને તે અત્યારે હાલ તમે જોઈ રહ્યા છો। મહત્વનું છે કે આ બીજો પ્લાન્ટ જે છે તે પણ જોવા મળી રહ્યો છે। અત્યારે હાલ તમે જોઈ રહ્યા છો કે કાઇનોસ જે સેમિકન્ડક્ટર સેમિકોનનો જે પ્લાન્ટ જે છે તેના કર્મચારીઓ જે છે તેમની સાથે વાર્તાલાપ કરતા નજરે પડી રહ્યા છે। તેમની સાથેના જે અનુભવો જે છે તે પણ વર્ણવી રહ્યા છે। લોકો જે તેમની સાથે છે કંપનીમાં કામ કરતા તે અનુભવો પોતાના વર્ણવતા નજરે પડી રહ્યા છે। આ સમગ્ર ચીપ જે છે તેનું નિર્માણ થશે, ક્યાં કામ કરશે, કેવી રીતે કામ કરશે અને કેટલી કારગતરૂપ સાબિત થશે, આ તમામ બાબતોની ઝીણવટપૂર્વક માહિતી જે છે તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મેળવી રહ્યા છે। જી ગૌતમ, આ સાથે અનેકવિધ રીતે આ પ્લાન્ટ મહત્વનો છે, કારણ કે રોજગારીની તકો પણ ઊભી થવાની છે અહીંયા।
જી બિલકુલ આમ જોવા જઈએ તો રોજગારીની તકો જે છે તે મોટા પ્રમાણની અંદર ઉપસ્થિત થવાની છે અને તેના કારણે અનેક લોકોને રોજગારી જે છે તે મળવાની છે. સાણંદ જે વાત કરીએ જીઆઈડીસી તો અમદાવાદની નજીક સૌથી રાજ્યની બેસ્ટ જીઆઈડીસી તરીકે સ્થાપિત થઈ છે અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમણે આ જીઆઈડીસીની સ્થાપના કરી હતી અને હવે આ જીઆઈડીસી અંતર્ગતની વાત કરીએ તો સેમિકોન જે પ્લાન્ટ જે છે તે પણ આવી રહ્યા છે, તેના કારણે વેગ મળવાનો છે. સાથે સાથે રોજગારીની વિપુલ તકો જે છે તે પણ સર્જાવાની છે. જો સમગ્ર પ્લાન્ટની વાત કરીએ તો 3300 કરોડના ખર્ચે આ પ્લાન્ટ જે છે તે શરૂ થયો છે અને તેમાં હજારો લોકોને રોજગારી જે છે તે મળવાની છે. એટલે કે હજારો લોકોને આ રોજગારીની તકોનું સર્જન કરી રહ્યા છે. એટલે કે જે રોજગારીની વાત કરવામાં આવે તો તેમાં મોટો એવો બુસ્ટઅપ જે છે તે યુવાનોને મળશે. સાથે ભારત જે છે તે માઇક્રોચિપ ક્ષેત્રની અંદર ઝીરો હતું તે હવે એવું રહ્યું નથી અને ભારતીય જે કહી શકાય કે ભારત જે છે તે વિશ્વની અંદર વિશ્વ ફલકની અંદર સેમિકોન સાથે માઇક્રોચિપ્સની અંદર પણ આગળનું સ્થાન જે છે તે ધરાવશે તે પ્રકારની વાત અત્યારે હાલ તો સામે આવી રહી છે. જી ગૌતમ, એવું કહી શકાય કે ભારત હવે ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે નવી ક્રાંતિ સર્જી રહ્યું છે. જી બિલકુલ, ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે નવી ક્રાંતિ એની વાત જે છે તે થઈ છે અને તે પ્રકારની વાત પણ સામે આવી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હવે મુખ્ય મંચ ઉપર પણ પહોંચી ચૂક્યા છે અને ટૂંક સમયની અંદર આ જે ઉદઘાટન પ્રસંગ કર્યો છે તે અંતર્ગત જે ઉદ્યોગકારો જે છે તેમને સંબોધન જે છે તે કરવાના છે. તે અંતર્ગત પણ મહત્વની વાત કરે, સાથે તે રોજગારીની વાત હોય, સાથે તે ભારતની જે વિશ્વ ફલક ઉપરની જે નામના જે છે તે તમામ બાબતો જે છે આ મંચ ઉપરથી વાત કરે તે પ્રકારના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. જી આજના જો કાર્યક્રમની વાત કરીએ તો એક કાર્યક્રમ તેમનો પૂર્ણ થયો છે, બીજો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે. આગળ પણ કયા પ્રકારના કાર્યક્રમ? જી ગૌતમ. તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેજ પર પહોંચી ચૂક્યા છે. આ પહેલા તેઓએ સંવાદ કર્યો હતો અને સાણંદ બન્યું છે સેમી કન્ડક્ટર હબ. તો કેન્સના સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે, આ સાથે જ તેઓએ યુવાનો સાથે પણ વાતચીત કરી. ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં ભારત આગળ વધી રહ્યું છે. Just now, ladies and gentlemen, we have witnessed history in making when, at the hands of the Honourable Prime Minister, Sir, the Kaynes Semicon OSAT facility has been inaugurated and its commercial production also commenced by Honourable Prime Minister, Sir. Ladies and gentlemen, semiconductors are often known as the digital diamonds of the 21st century. They are often called as a digital backbone of any economy. And today, ladies and gentlemen, at the hands of the Honourable Prime Minister, Sir, this backbone has been further strengthened by India's leadership, by India's capability, by India's competency, and spread over this massive area of almost... What connects the inquisitiveness of a child to the hope and patience of a farmer? What links the precision of a surgeon to the roar of a rocket piercing the clouds? One answer, one object. A tiny microchip that's smaller than your fingernail, lighter than a grain of rice, is the heart of several devices that make our lives easier and convenient. For decades, this critical semiconductor industrialization happened far away from our shores. We were living in an era of dependency, which showed up vividly during COVID-19, with manufacturing almost coming to a halt and supply chain frozen across the continents. Guided by the vision of our Honorable Prime Minister, India took a bold step toward establishing its domestic semiconductor manufacturing ecosystem. अगर पिछली शताब्दी का रेगुलेटर ऑयल था, तो इस शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप होने वाली है। साथियों, इसी सोच के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया। आप याद कीजिए, जब दुनिया कोविड के कहर से जूझ रही थी, तब भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की थी। अभी तक सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत कुल 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। Kaynes Semicon was among the first 5 projects approved under India's semiconductor mission.
marking a significant step in building the nation's self-reliant ecosystem. In January 2025, affirmative action began to end the dependency. Not a business decision, but a declaration. The ground was shifting and a bridge to the clean room was being built. A massive 18,000 square meter sanctuary of precision, powered by over 1,200 state-of-the-art machines. We didn't just build an OSAT facility. We strengthened India's self-reliance and signaled independence from the global queue. India can no more be labeled for services alone, but for high-tech manufacturing as well. With a staggering capacity of 2.3 billion chips per year, Kaynes Semicon is not just participating, we are leading. From flip chip to heterogeneous integration and co-packaged optics, we are mastering the complexities that the future demands. The concept of Atmanirbhar Bharat is not about self-reliance alone. It's about opening our wings to the world and sharing the benefits of growth with all humanity. Kaynes Semicon is leading the OSAT way and making India's future uninterruptible. आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होता। ये इकोसिस्टम मशीन बनाने वाले, डिजाइन इंजीनियर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, लॉजिस्टिक नेटवर्क और स्किल टेक्नीशियंस, ऐसे अनेक लेयर के से मिलकर के बनता है। सबके तालमेल से एक चिप तैयार होती। भारत भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की पूरी वैल्यू चेन पर फोकस कर रहा है। Kaynes Semicon is bringing the global ecosystem to India. From Make in India to Made in India. Jai Hind. So that, ladies and gentlemen, is our semiconductor revolution, and Kaynes Semicon playing an important role in it, and their further futuristic vision and mission. We invite that, and for that, may I request Mr. K. Raghunathan Panikkar, the CEO of Kaynes Semicon, to be kindly sharing his vision with his welcome address. Hello. Good afternoon, Honorable Prime Minister. Good afternoon, Honorable IT Minister. Good afternoon, Honorable Chief Minister. Good afternoon, Honorable Deputy Chief Minister. Good afternoon, Science and Technology Minister. Members from Kaynes and dignitaries and friends. Shouldn't we give a round of applause to the Prime Minister? Did we ever believe that Kaynes technology can reach to a point where we invite our Prime Minister to come to a plant? Don't we think we have reached a point? This is marvelous for us. Prime Minister, I am not here to give any speech. I want to tell you a story amongst the large engineering crowd that we have. 38 years before, Prime Minister, we had a semiconductor lab that came in Chandigarh. Some of us went there. We started to work. Over 10 years, Prime Minister, many of them left and went to outside of India because there was no roadmap, there was no path shown. Some of us stayed back, went to do chip design, EDA, did test, did ESDM, EMS. I myself had thought in my lifetime I will never get to see the OSAT and the fab. I'm so proud to 5 years before you set up this ISM vision and set a roadmap for us to do an OSAT. It's a dream that we are living. Thank you, Prime Minister, for that. The words would never be less if we don't talk about our beloved IT Minister. I keep telling this, anybody who would want to learn semiconductor should look at his videos, should look at his YouTube channels. Every ECMS approval that our minister brings in, he talks. Today, our Alpha Omega Semiconductor CEO was chatting with him, and he was telling him that, India has arrived.
I tell it was a design. It just didn't happen. The minister set a roadmap achieving the mission of our Prime Minister. You see the video. They set a path. They made sure that, design-linked incentive come into India. They made sure that there are fabulous startups come into India. They made sure that there's a workforce development happens in India. There was a chip to startup program that is adhering under DLI, and there is a thought-through process. Step by step things are coming up. Look at ISM 1.0. 10 billion funding has already been done, which also means that another 10 billion has come from the industry. So thank you, IT Minister, for showing us this path and taking. And I'm sure there is ISM 2.0 for all of us. With these words from entire India's Semiconductor Association and the entire electronic semiconductor ecosystem, we all want to say one thing: thank you. Thank you very much, sir. And now, ladies and gentlemen, we seek the progressive views of our Honourable Minister of Electronics and Information Technology, and that also of Railways and Information and Broadcasting, Shri Ashwini Vaishnav ji. भारत को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और सेमीकंडक्टर में एक आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के कर्मठ और विजनरी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई सांघवी जी, उपस्थित माननीय मंत्री श्री अर्जुन भाई मोढवाडिया जी, केंद्र से रमेश जी, रघु जी, स्टीफन, सभी माननीय सांसद और माननीय विधायक बंधु जो सभी यहाँ पर उपस्थित है, और मेरे बहुत ही प्रिय सभी इंजीनियरिंग के छात्रों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। आज भारत का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हर इंजीनियर के मन में जो हर्ष है, जो एक उत्साह है और जो वर्षों का ड्रीम है, वो आज आपने पूरा किया। आपको शत शत नमस्कार, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आपने सभी केवल भारत का एक फाउंडेशन ले नहीं किया है, आपने हर इंजीनियर के मन में एक ऐसा उत्साह जगाया है जो आने वाले कई दशकों तक देश के निर्माण में काम आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये गुजरात की और आपके नेतृत्व की एक मिसाल है कि मात्र 14 महीने में फाउंडेशन से लेके आज कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ। ये संभव हो पाया आपके दूरदर्शी नेतृत्व से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मठ लगातार फॉलोअप से ये संभव हो पाया। मैं अभी कुछ देर पहले स्टीफन से पूछ रहा था, आई वाज आस्किंग स्टीफन, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वालिटी, स्टीफन? Excellent. Great. Stephen is saying that the quality is excellent from the product, from this plant, and that is what we have to always consider. We have to win on quality, we have to win on cost, then only we will be able to sustain and make that position in the entire world. माननीय प्रधानमंत्री जी, पहला प्लांट आपने 28 फरवरी को आरंभ किया, आज 31 मार्च को दूसरा प्लांट, और अब तीसरा प्लांट आते आते जुलाई में आरंभ हो जाएगा। 2026 में 4 प्लांट सेमीकंडक्टर के रेडी हो जाएंगे, 2027 में 2 और प्लांट रेडी होंगे, और भारत की पहली फैब धोलेरा में 2028 में रेडी होगी। ये एक ऐसा गौरव का क्षण है कि आपके बताए हुए रास्ते पर देश ने विश्वास किया, दुनिया ने विश्वास किया, और आज पूरा इकोसिस्टम भारत में बन रहा है। अब मशीनें, केमिकल्स, गैसेस, टेस्टिंग एबिलिटी, और सबसे बड़ी बात जो आज हमारे युवा इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, करीब 60,000 युवा इंजीनियर्स ने दुनिया के सबसे स्पेशलाइज्ड डिजाइन के टूल्स, चाहे सिनॉप्सिस हो, कैडेंस हो, उन सब पे ट्रेनिंग ली है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सिनॉप्सिस, कैडेंस पे ट्रेनिंग ली है? भाई पीछे जो स्टूडेंट्स आए हो, हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ 2 मिनट।
जिन्होंने जिन्होंने सिनॉप्सिस कैडेंस पे ट्रेनिंग ली है? वेरी गुड। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, इनकी चिप्स बनाई हुई, इनकी डिजाइन की हुई चिप्स अपने लेबोरेटरी चंडीगढ़ में जो है उसमें बन रही है, और दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर इंजीनियरिंग का, बीटेक का, एमटेक का स्टूडेंट बोल सके कि मैंने चिप डिजाइन की, वो चिप मैन्युफैक्चर हुई, मैंने उसको बोर्ड में डाल के टेस्ट किया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी आपका विजन है कि आज भारत में 60,000 युवा, 60,000 इंजीनियर दुनिया को चैलेंज करने के लिए तैयार हो गए, और ये 315 यूनिवर्सिटी में, देश के कोने कोने में यूनिवर्सिटीज है जहां पर यह तैयारी हुई है। आज भारत में चाहे एनवीडिया हो, एएमडी हो, आर्म हो, इंटेल हो, सब के सब 2 नैनोमीटर की चिप्स को भारत में डिजाइन कर रहे हैं, और दुनिया में विश्व भर की सबसे कॉम्प्लेक्स चिप्स आज भारत में डिजाइन हो रही है। डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया, पूरा इकोसिस्टम भारत में प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी नेतृत्व से आ गया है। और अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में विश्व कहता है कि भारत ने सेमीकंडक्टर में अब टेक ऑफ कर लिया है। लेकिन अब हमें अपने एम्बिशंस को और बढ़ाना होगा, अब हमें अपने लक्ष्य को और भी ऊंचा करना पड़ेगा। सेमीकॉन 2.0 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम भारत में आना चाहिए। केमिकल्स में भारत में मैन्युफैक्चर हो, गैसेस भी भारत में मैन्युफैक्चर हो, जो मशीनें सेमीकंडक्टर की चिप्स बनाने के लिए काम में आती है वो मशीनें भी भारत में मैन्युफैक्चर हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके विजन को ये आज का युवा भारत जरूर पूरा करेगा, और ये विकसित भारत बनाने का जो आपका लक्ष्य है, इस सेतु को बनाने में बहुत हमारे जैसे हजारों ऐसे लोग हैं जो उस गिलहरी की तरह आपके इस यज्ञ में भाग लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2032 तक भारत विश्व के टॉप 6 सेमीकंडक्टर नेशंस में शामिल होगा, और 2047 तक आपके विजन के अनुसार भारत विश्व के टॉप 3 नेशंस में आगे बढ़ेगा। इसी विजन के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आपके इस विजन को मैं एक छोटे से कवि की भाषा में कहना चाहूंगा। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए और अनेक ऊंचाइयों को छूने के लिए, सभी को संकल्पबद्ध करने के लिए धन्यवाद। और देवी सज्जनों, अब गुजरात की विकास यात्रा के अग्रदूत अपने मेजबान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। कैंट सेमीकॉन लिमिटेड के उद्घाटन अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे विश्व नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, भारत सरकार के आईटी तथा रेलवे मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, मेरे साथी उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, मेरे साथी मंत्री श्री अर्जुन भाई मोडवाडिया, कैंस के वाइस चेयरमैन श्री रमेश कुन्ही, सीईओ श्री रघु पणिकर, अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर के सीईओ श्री स्टीफन चेंग। Forward and in the august presence of the Honorable Prime Minister, requesting Mr. Ramesh Kunikanan to kindly hand over the Kane Semicon product to our valued global anchor customer to AOS. Ladies and gentlemen, this is a very proud symbol of India's growing strength in the global semiconductor value chain. और ये केवल एक चिप का हस्तांतरण नहीं है,
बल्कि देखा जाए तो भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक विश्वास का प्रतीक है। डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक भारत आज विश्व के सेमीकंडक्टर परिदृश्य में एक सशक्त और विश्वसनीय भागीदार बनकर उभरा है। तो हमने देखा कि किस तरह से एक छोटी सी चिप में दिव्य सज्जनों छुपे हैं अनेक सपने, सपने विकसित भारत बनने के, सपने आत्मनिर्भर भारत बनने के और सपने ग्लोबल हब बनने के। और इन सपनों को एक उड़ान और पहचान देते हुए, दिशा और गति देते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के हम सभी इच्छुक हैं। तो आप सभी की विशेष तालियों के बीच देवी सज्जनों, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, राज्य के मंत्री भाई अर्जुन मोढवाडिया जी, केन्स और अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर्स के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, पिछले महीने के अंतिम दिन भी मैं साणंद में था और इस महीने के अंतिम दिन भी मैं साणंद में हूं। 28 फरवरी को माइक्रोन के प्लांट में प्रोडक्शन की शुरुआत हुई और आज 31 मार्च को केन्स टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर प्लांट के प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ये मात्र संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस स्पीड से, किस गति से, किस स्पीड के साथ डेवलप हो रहा है। मैं केन्स टेक्नोलॉजी की पूरी लीडरशिप को बहुत बहुत बधाई देता हूं। रमेश, रघु, कांग्रेचुलेशंस। गुजरात सरकार को, इस प्लांट में काम कर रहे और सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज सुबह मैं एक डिवाइन वाले कार्यक्रम में था और अभी मैं डिजिटल वाले कार्यक्रम में हूं। साथियों, मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारत की कंपनी ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने में रुचि दिखाई और नतीजा हम सबके सामने है। हमारे भारत की अपनी कंपनी केन्स अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मजबूत हिस्सा बन गई है। ये एक बहुत शानदार शुरुआत है, एक गर्व का पल है, हर भारतवासी के लिए गर्व का पल है। आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कोलैबोरेशन के माध्यम से दुनिया को एक रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रही है। साथियों, आज का ये दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मंत्र को सही मायने में चरितार्थ करता है। इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू होने से भारत ग्लोबल मार्केट में
एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर सप्लाई के रूप में अपना रोल और सशक्त कर रहा है। आज एक प्रकार से साणंद और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणंद का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां बनने वाले प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा पहले ही एक्सपोर्ट के लिए बुक हो चुका है। साणंद में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी। साथियों, यहां बनने वाले इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल से भारत और विश्व के इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को, हेवी इंडस्ट्री को बहुत बल मिलेगा। यही ग्लोबल पार्टनरशिप ही दुनिया के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। साथियों, 21वीं सदी का ये दशक आरंभ से दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया है। संकट पैंडेमिक का रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का रहा है। इसमें भी सबसे बड़ी भुक्तभोगी ग्लोबल सप्लाई चेन रही है। चाहे चिप्स हो, रेयर अर्थ मिनरल्स हो, एनर्जी हो, एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत प्रभावित हुए हैं। ये मानवता के तेज विकास से जुड़ी चीजें हैं। इनकी सप्लाई चेन में, इनके फ्लो में ब्रेक लगने से पूरी ह्यूमैनिटी का विकास प्रभावित होता है। इसलिए भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश का इस दिशा में आगे बढ़ना पूरे विश्व के विकास के लिए बहुत अहम है। साथियों, हमने कोरोना की आपदा के समय ही तय कर लिया था कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया ग्लोबल हब बनेगा, इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। और सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता सिर्फ एक चिप तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है एआई में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्लीन एनर्जी में, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसे अनेक सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। इसलिए साल 2021 में भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया। यह मिशन सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का ऐलान है और इसका इंपैक्ट सबके सामने है। इस मिशन के तहत देश के 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। केन्स और माइक्रोन के प्रोजेक्ट भी इसी का हिस्सा है। सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए ध्रुव 64 जैसा आधुनिक माइक्रो प्रेशर
आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। इससे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऐसे अनेक सेक्टर्स के लिए हमें एक अपना सुरक्षित प्रोसेसर प्लेटफॉर्म मिला है। साथियों, सेमीकंडक्टर मिशन की अब तक की सफलता के बाद अब भारत ने इसके अगले फेज की तरफ कदम बढ़ाया है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है। इस फेज का फोकस भारत में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल्स के प्रोडक्शन पर है। अब हमारा प्रयास एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है, ताकि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी पार्टनरशिप कर सके। साथियों, भारत आज इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स को प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी हो और एक फ्यूचर रेडी स्किल्ड वर्कफोर्स भी तैयार हो। बहुत जल्द ही देश में 85,000 से अधिक डिजाइन प्रोफेशनल्स तैयार करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही पूरे इकोसिस्टम की जरूरतों को देखते हुए प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। सेमीकंडक्टर डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए चिप टू स्टार्टअप भी कार्यक्रम चल रहा है। आज देश की करीब 400 यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स को आधुनिक डिजाइन टूल तक एक्सेस दी गई है। इससे 55 से अधिक चिप का डिजाइन और निर्माण किया जा चुका है। साथियों, इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अनुसार आज भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब $50 बिलियन यानी करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का है। ये इस दशक के अंत तक $100 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। ये दिखाता है कि भारत में इस सेक्टर में कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं। हमारा टारगेट अपनी जरूरतों की अधिक से अधिक चिप्स भारत में ही बनाने का है। भारत के इस संकल्प को लेकर दुनिया भर के निवेशकों में जो उत्साह है वो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, भारत एक सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तो बना ही रहा है, साथ ही रॉ मटेरियल की रेजिलियंट सप्लाई चेन के लिए भी बड़े प्रयास कर रहा है। पैक्स सिलिका में भारत का शामिल होना इसी प्रयास का ही एक हिस्सा है। दुनिया भर में जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर भारत में हम एक सुरक्षित सप्लाई चेन सुनिश्चित करना चाहते हैं। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी शुरू किया है। इसके तहत क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग और प्रोडक्शन पर बल दिया जा रहा है। मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए भी 1500 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की गई है।
इस वर्ष के बजट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरलम जैसे कोस्टल स्टेट्स को मिलाकर रेयर अर्थ कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। ये कॉरिडोर एक ऐसा इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा जो माइनिंग, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की एक सशक्त चेन बनाएगा। हमारा प्रयास है कि देश में क्रिटिकल मिनरल्स का एक राष्ट्रीय भंडार हो। अच्छा होता कि ये काम 30-40 वर्ष पहले शुरू होता, लेकिन अब भारत इसके लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। साथियों, भारत का मानना है 21वीं सदी का एक कालखंड सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन का समय नहीं है, ये फ्यूचर के टेक लैंडस्केप को शेप करने का समय है। इसलिए मैं इस दशक को, इस डेकेड को भारत का टेकेड कहता हूं। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी से जुड़े जो इनिशिएटिव ले रहा है, वो आने वाले दशकों में भारत की लीडरशिप को सशक्त करेंगे। आप सभी हाल में हुई एआई इंपैक्ट समिट की सफलता से परिचित हैं। अगर एआई एडॉप्शन के मामले में देखें तो भारत दुनिया के में सबसे आगे हैं। हम भारतीय टेक को एक्सप्लोर करते हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता, फिनटेक में हो रहा शानदार काम, ये टेक्नोलॉजी पर भारतीयों के भरोसों को ही हम देख पाते हैं, उसे दिखाता है। और भारत का जो एआई इकोसिस्टम है, उसको हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर के उभार में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं, बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी नीतियां और हमारे निर्णय आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी की मजबूत नींव रख रहे हैं। इसलिए आज भारत हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है, इन स्पेस जैसी संस्थाएं बनाई हैं। इसका परिणाम आज दिख रहा है। स्पेस से जुड़े हमारे स्टार्टअप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। इसी तरह हाल में ही हमने न्यूक्लियर सेक्टर में शांति बिल जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी के हिस्से को बहुत अधिक बढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारे एआई फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है। साथियों, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग को भी एक स्ट्रेटेजिक एसेट मानकर मिशन मोड पर काम कर रहा है। ये भारत के डिजिटल फ्यूचर को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यानी भारत आज टेक्नोलॉजी के विकास और टेक्नोलॉजी के यूज दोनों ही मामलों में बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईज इन लॉजिस्टिक, इस पर भी निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे विश्वास है
केन्स के इस प्लांट से निकलने वाले प्रोडक्ट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के सफर को और मजबूती देंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। डेकेड ऑफ टेक्नोलॉजी में 21वीं सदी का संकल्पबद्ध, प्रयत्नशील, प्रगतिशील भारत की सोच और उसकी विजन आपकी, उसकी तरफ हमें ये तस्वीर साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। और दिव्य सज्जनों, एक बार पुनः सेमीकंडक्टर क्रांति के सूत्रधार माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सभी की जोरदार तालियों के साथ उनका। તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સાણંદમાં કેન્સના સેમીકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન આજે કરવામાં આવ્યું છે અને વિકાસની ભેટ આપવામાં આવી છે। તો આ સાથે આજે ગુજરાતનો તેમનો પ્રવાસ હતો અને ગુજરાત ખાતે અમદાવાદ શહેરમાં કોબા ખાતે તેમના દ્વારા સૌપ્રથમ મ્યુઝિયમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ તેઓ સાણંદ ખાતે પહોંચ્યા હતા અને સાણંદ ખાતે કેન્સના સેમીકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન તેમના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે। આ વિકાસની ભેટ તેમને આપવામાં આવી છે। તો આ સાથે ઇન્ડસ્ટ્રી એસ્ટિમેટ અનુસાર ભારતનું સેમીકન્ડક્ટર માર્કેટની જો વાત કરવામાં આવે તો લગભગ 4.5 લાખ કરોડનું છે અને જે દાયકાના અંત સુધીમાં $100 બિલિયન એટલે કે 9 લાખ કરોડને પાર કરી શકે છે તે પ્રકારની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તો ભારતમાં આ સેક્ટરમાં કેટલી વિશાળ સંભાવના છે તેના વિશે પણ પીએમ મોદી દ્વારા વાતચીત કરવામાં આવી છે।